थर्मोडायनामिक्स। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जब मैं बोलता हूं व्हेन आई एम सेइंग थर्मोडायनामिक्स, when I am using the word thermodynamics, this word thermodynamics is made up of two Greek words. ये जो वर्ड थर्मोडायनामिक्स है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। क्या है वो दो ग्रीक वर्ड्स, जरा देखना एक बार। थर्मी एंड डायनामिक्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड थर्मी? ये जो ग्रीक वर्ड है थर्मी, इसका मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रीक वर्ड थर्मी? फटाफट से बोलेंगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रीक वर्ड थर्मी? फटाफट से बोलेंगे। हीट। What is the meaning of this Greek word dynamis? Power. Power. अच्छा, ये पावर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना बेटा, कैन वी राइट रेट ऑफ वर्क मीन्स, बहुत ही जनरल उसमें लिख रहा हूं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइमिंग, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? Subhajit, Puna, can I say a beautiful thing? Basically, thermodynamics is the branch of science which is connecting heat and work interactions. Can I say one beautiful thing from here, beta? अरे ये तो थर्मोडायनामिक्स वर्ड ही बोल रहा है। थर्मोडायनामिक्स इज व्हाट? थर्मोडायनामिक्स इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, थर्मी एंड डायनामिक्स। थर्मी एंड डायनामिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मी? थर्मी इज हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स? डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। सो कैन आई से थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which is related to energy interactions, basically heat and work interactions. बोलो रे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। yes yes yes, are you clear till here? बोलो रे बाबा, are you clear till here? 100% I can say thermodynamics is the branch of science which deals with the energy interactions in bracket heat and work interactions. अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, let us suppose I am having one piston cylinder arrangement. ध्यान से देखना, let us suppose this is cylinder, let me say this is the piston, and let me say this piston cylinder arrangement is carrying some gas. Let us suppose I am having a piston cylinder arrangement and this piston cylinder arrangement is having some gas. Now let us suppose I am supplying heat to this gas. मान लीजिए ये जो air है मैं इसको सप्लाई कर रहा हूं heat. The moment I am supplying the heat to this gas, can you tell me, the moment I will be supplying the heat to this air, can you tell me what is going to happen? क्या होने वाला है? Can you tell me what is going to happen? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा, can you tell me what is going to happen? Let us suppose I am supplying some heat to this air. Any intelligent student of the class can tell me what will happen to the 100%. Yes, yes, absolutely correct. Yes, 100% this piston will be moving upward. There is no doubt. There is no doubt. 100% this piston will be moving upward. That means what? 100% the volume of the air is increasing. 100% volume of air increases. There is no doubt. Volume of air increases. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा। अगर volume of the air increases, can you observe one thing? 100% I can say there will be some work done by air. एयर ने कुछ वर्क किया होगा, एयर ने कुछ वर्क किया होगा। 100% this is coming under the domain of thermodynamics. There is some heat interaction, there is some work interaction taking place. Yes, it is coming under the domain of thermodynamics. But can you observe one beautiful thing beta? Can you observe 100% volume is increasing, and if I am asking you what will happen to the temperature, तो आपका जवाब होगा सर टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा। 100% टेम्परेचर also increases, there is no doubt. 100% टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा, देयर इज नो डाउट।
100% टेम्परेचर इंक्रीजेस। मान लो this air was having initial temperature of 25 degrees Celsius. If I ask you after supplying this much amount of heat the system is doing this much of work, let us suppose, मैंने एक वर्ड यूज किया सिस्टम, इसको मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एयर, कहां आप इसकी स्टडी करने वाले हैं? यू विल बी डूइंग सच स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स ओनली। तो यस, thermodynamics is the branch of science which deals with energy interactions in bracket heat and work interactions, but at the same time it deals with effect of these energy interactions on these are known as beta property, on the property of the system। तो बेटा मैं यहां से आपको एक थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शंस इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। फॉर द टाइम बिंग आप ये मानकर, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा कि प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, सिस्टम, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। फॉर द टाइम बिंग आई एम टेलिंग यू, मान लो ये जो वॉल्यूम है, ये जो टेम्परेचर है, ये अगर एयर को मैं सिस्टम मान रहा हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो बेसिकली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखना बेटा, अब कोई भी नाम पढ़ता, थर्मोडायनामिक्स नाम ही तो है, तो सबसे पहले किसी ने ये नाम दिया होगा, तो सबसे पहले किसी ने ये नाम यूज किया होगा, किसी ने सबसे पहले इस थर्मोडायनामिक्स वर्ड को यूज किया होगा। सो माय फ्रेंड्स, लॉर्ड कैल्विन साहब थे। लॉर्ड कैल्विन वाज द पर्सन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस वर्ड थर्मोडायनामिक्स। कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया? अगर आप यहां तक क्लियर फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, देन आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शंस इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यहां पे दो बड़े वर्ड यूज हो रहे हैं, सिस्टम और दूसरा वर्ड यूज हो रहा है प्रॉपर्टी। इन दोनों का क्या मतलब है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आप ये मान के चलिए जो मेरा एयर है वो एयर एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, एंड लेट मी से द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम। यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं तो फिर मैं आगे चलूंगा। यस, क्रिस्टल क्लियर है रे बाबा? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, नाउ लिसन केयरफुली बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। व्हाट आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न इन थर्मोडायनामिक्स? ये जो थर्मोडायनामिक्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं बेटा, थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। The first chapter which we are going to discuss is basic concepts. Basic concepts. बेटा मैं तो हमेशा यही मानता हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हो तो पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए, जहां पे आपको सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इवन इनफैक्ट यू गो टू हीट ट्रांसफर आल्सो माय फर्स्ट चैप्टर विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली इन थर्मोडायनामिक्स पहला चैप्टर रहने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर? बेटा आई विल बी गिविंग यू द बेसिक डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, प्रॉपर्टी, स्टेट, path, process, irreversible process, internally reversible process, externally reversible process, totally reversible process, ideal gas, real gas, zeroth law, thermometry, each and everything we are going to discuss in basic concept. Once you are thoroughly clear with this chapter, first chapter basic concept, then we will be moving to second chapter work interactions. Now when I'm saying work interactions, keep your mechanics work aside. I will be talking about the thermodynamic work, I will be talking about the displacement work, I will be talking about the electrical work, I will be talking about the soft work. ये सारे वर्क्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं,
कैसे कैलकुलेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस चैप्टर. Let us suppose I am having a cyclic process. Then how to find the net work interaction of the cyclic process? I will be telling you in this chapter. मान लीजिए cycle clockwise है, anti clockwise है. What is the meaning of that on PV diagram? On a PV diagram I am having clockwise cycle, I am having anti clockwise cycle. तो उसका क्या मतलब है? Each and everything we are going to discuss in work interactions. जैसे ही work interaction खत्म होगा बेटा, your second chapter will be over. Now listen carefully. किसी एक गिवन अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए कितना हीट चाहिए, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड. सो इस चीज को समझने के लिए आई शुड हैव सम कनेक्टिंग लिंक, I should have something which will be connecting the heat interactions and work interaction, and that connecting link will be chapter number 3, first law of thermodynamics. So beta, in this first law of thermodynamics I will be discussing the first law of thermodynamics for a cycle, for a process. I will be discussing the consequences of first law of thermodynamics. जितने भी consequences सारे के सारे यहीं डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने. Let us suppose the first consequence will come, heat is the path function. Second consequences, maybe energy is the property of the system, maybe something. Third consequence, maybe perpetual motion machine of first kind is impossible. ये आएगा बेटा आपका थर्ड चैप्टर, फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे. Now in fourth chapter I will be discussing what is internal energy, what is enthalpy, and what are the various formulas of heat interactions for various processes. ये हो जाएगा बेटा आपका चौथा चैप्टर. एंड याद रखना, प्लीज लिसन केयरफुली, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, टिल हेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोज सिस्टम ओनली. यहां तक जो भी मैं डिस्कस करूंगा बेटा वो क्लोज सिस्टम से रिलेटेड होगा. ओके, इन हीट इंटरेक्शन आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज फ्री एक्सपेंशन. यहां तक आप लोग क्लियर हैं? आर यू क्लियर टिल हेयर? फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा. आर यू क्लियर टिल हेयर? यहां तक आप लोग क्लियर हैं? In chapter number 1 we are going to discuss the basic concept. Chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, work interaction, first law of thermodynamics, heat interaction. These are related to what? Closed system only. बेटा मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं आपको. आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, इन क्लोज सिस्टम देयर विल बी नो मास इंटरेक्शन. अब मान लो मास इंटरेक्शन भी, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एनर्जी इंटरेक्शन इन क्लोज सिस्टम, लेकिन मान लो मास इंटरेक्शंस भी होने लगे. लेट अस सपोज द मास इंटरेक्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस अलोंग विद, can take place along with energy interactions, then my system will become open system. और इस open system को हम separately पढ़ने वाले हैं in chapter number 5. That means in chapter number 5 we will be dealing with the mass interactions also. We will be dealing with the open systems. I am going to discuss the energy equation. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, what is steady flow energy equation, and we are going to apply steady flow energy equation for various steady flow devices, maybe nozzle, maybe diffuser, maybe turbine, maybe some mixing chamber, maybe compressor, maybe throttling device. So उसके एप्लीकेशंस भी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के एप्लीकेशंस भी हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं. एंड डोंट फॉरगेट आई विल डिस्कस अनस्टडी फ्लो आल्सो. बहुत लोगों को अनस्टडी फ्लो से डर लगता है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं, यहां तक मैं आपके साथ रहूंगा, नीड नॉट टू वरी. अनस्टडी फ्लो करवा के जाऊंगा यहीं आपके सामने, ठीक है? राज हेलो बेटा. ना चैप्टर नंबर 6, second law of thermodynamics. Now listen carefully. Second law of thermodynamics will be coming into the picture because first law of thermodynamics will not give you direction of the process. वो कहीं पर फेल हो जाता है बेटा, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहीं पर जाकर फेल हो जाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन नॉट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस. किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगा वो नहीं बता सकता. दैट इज द रीजन व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर. और यहां पे मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, आई विल बी डिस्कसिंग द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर्स, सोर्स, सिंक. आई विल बी टॉकिंग अबाउट हीट इंजन. सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वहां से हम लोग क्या करेंगे, हीट इंजन के बारे में बात करेंगे, हीट पंप के बारे में बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी, सीओपी. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड एट द एंड I will be discussing one beautiful thing, Clausius inequality.
और इसी क्लॉसियस इनइक्वालिटी से वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एंट्रोपी। यहीं से एंट्रोपी स्टार्ट होगा बेटा। पूरा डिटेल में एंट्रोपी पढ़ाने वाला हूं। मिनिमम 25 आवर्स आई विल बी टीचिंग एंट्रोपी चैप्टर। सिर्फ एंट्रोपी चैप्टर, ओनली एंट्रोपी चैप्टर आई विल बी टीचिंग एटलीस्ट 25 आवर्स, सो दैट आपके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल जाए। बेटा इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपके जो एप्लीकेशंस वाले सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही इजी हो जाएंगे, वेदर इट इज आईसी इंजन, वेदर इट इज पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कंप्रेसिबल फ्लो, ये बहुत ही इजी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। यू नीड नॉट टू वरी बेटा, you need not to worry. Are you getting what I'm saying? Now in entropy chapter I will be telling you what is the mathematical meaning of entropy, what is the physical meaning of entropy, what is the statistical meaning of entropy. I will be giving you how to calculate the entropy change of incompressible substance, how to calculate the entropy change of constant temperature reservoir, how to calculate the entropy change of some perfect gas. तो आपको सारी चीजें यहीं पर ही मिलने वाली हैं। एक बार आपका चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ, देन वी विल बी गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 8 विच इज एक्सर्जी। इन एक्सर्जी वी विल सी, लेट अस सपोज आई एम हैविंग सम constant temperature reservoir, it can supply some heat, it can deliver some energy in the form of heat. From that given heat what will be the maximum possible work output, उसकी यहां पर एनालिसिस करने वाले in the chapter of exergy. Are you getting what I'm saying? Let us suppose some air is flowing through the pipe. When air is flowing through the pipe, it is carrying some energy. From that energy, what is the maximum possible useful work we can do? तो ये सब एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं एक्सर्जी चैप्टर में। विल बी डिस्कसिंग इन एक्सर्जी चैप्टर। एंड नाउ द 9th चैप्टर विल बी थर्मोडायनामिक रिलेशंस। In thermodynamic relations we will be establishing the relations between measurable quantities and non measurable quantities. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज, जिसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, यू कैन मेजर डायरेक्टली। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम लोग रिलेशंस एस्टैब्लिश करने वाले हैं। देन द लास्ट चैप्टर विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंस, गिब्स फेज रूल, वेरियस प्रॉपर्टी डायग्राम्स, क्लॉसियस इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, इसी लास्ट चैप्टर में बेटा होने वाला है। एंड याद रखना ये लास्ट चैप्टर भी बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाला है। approximately 20 hours I am going to discuss properties of pure substance because it will be very handy in power plant and refrigeration and air conditioning. तो यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? यहां तक सब लोग क्लियर हैं बेटा? इट विल टेक टाइम। सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स? इट विल टेक टाइम बेटा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन क्लियरली, primarily this course is for GATE 2022, 2023, engineering services 2022, engineering services 2023 स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं बेटा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट, सो इट विल टेक टाइम, 100% it will take time, but by GATE 2021 I will try to cover most of the part. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 2021 तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। But I am again telling you, those who are looking for GATE 2021, I am already having 80/20 series, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। ओके, so are you ready? Shall we move forward? I want everyone to type in chat box. I want everyone to type in chat box. अगर आप यहां तक रेडी हैं, यहां तक सब चीजें क्लियर हैं, I will move forward. Beta, I told you I'm not going to compromise with the content beta. Those who know me better, for fluid mechanics I have discussed around 180 hours. लगभग 180 घंटे की क्लासेस ली हैं, एक बार जाके देख लो। tinyurl.com/Negitan, आपको पूरा कंटेंट मिलना है, बस आपको एब्जॉर्ब करना है। यू हैव टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट। चलो, यस नेगी सोल्जर सर रेडी? यस 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 यस। ना सर कौन सी बुक्स फॉलो करनी है? ये बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों के बीच में। बच्चों के बीच में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर बुक कौन सी फॉलो करें हम लोग। तो मैं आपको बता देता हूं जो मुझे लगता है कि दीज आर द बेस्ट बुक्स फॉर थर्मोडायनामिक्स। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। द फर्स्ट बुक विच आई एम रिकमेंडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, एसआई वर्जन लेना बेटा आपको।
मॉरन एंड सपीरो, बहुत ही बेहतरीन बुक है बेटा, मॉरन एंड सपीरो, वाइले पब्लिकेशन की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक। डोंट वरी, if you are not able to purchase hard copy, I will be giving you the soft copy today itself on Negi 10 Telegram channel। आज नहीं तो कल सुबह तक आपको बुक्स मिल जाएंगी। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक बेटा, मोरान एंड सपीरो। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो, आर यू एबल टू सी बेटा, ये रेड कलर की बुक है, ये रेड कलर की बुक है, क्या आपको दिख रहा है? आप देख पा रहे हैं बेटा? क्या आप देख पा रहे हैं? टाइप इन चैट बॉक्स यस। ठीक है, मोरान एंड सपीरो ये एक बुक है विच आई रियली लाइक, दिस इज वन थिंग बेटा। नाउ द सेकेंड बुक, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एसआई वर्जन, बॉर्गनेक एंड सॉन्टेक, अगेन वाइले पब्लिकेशन के। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, ये है बेटा, दिस इज द बुक, अगेन वाइले पब्लिकेशन की है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। दिस इज द सेकंड बुक विच आई फील इज गुड। ओके फाइन। नाउ थर्मोडायनामिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच इन एसआई यूनिट्स, सेंजल एंड बोल्स, मैग्रॉ हिल की है बेटा। दिस इज द बुक। जो भी बुक आप खरीदना चाहेंगे प्लीज मेक श्योर यू आर परचेजिंग इन एसआई यूनिट्स ओनली, सेंजल एंड बोल्स। नाउ इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, पीके नाग, मैग्रॉ हिल, कुछ इस तरीके की दिखती है बेटा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर खरीदने जाओ तो आपको इजी रहे। इफ यू आर विलिंग टू परचेज इट शुड बी इजियर फॉर यू पीपल। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना, मॉरन एंड सपीरो, बॉर्गनेक एंड सॉन्टैग, सेंजल एंड बोल्स, इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप कॉन्सेप्ट्स के लिए परचेज कर सकते हैं। इफ यू आस्क माई प्रायोरिटी, आई विल बी टेलिंग यू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेंजल एंड बोल्स, सेकेंड प्रायोरिटी टू मॉरन एंड सपीरो, थर्ड प्रायोरिटी टू, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। लेकिन एज ए स्टूडेंट आई विल रिकमेंड यू कैन गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेंजल एंड बोल्स। अगर इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए then you can go for Moran and Sapiro. Born and Sontag little difficult to understand, so you can keep it at last. Now last में पीके नाग, you should have पीके नाग बेटा। पीके नाग तो आपके पास होनी ही चाहिए। पीके नाग आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहां से, है ना? ठीक है, पीके नाग के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हाँ यस, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, जिन लोगों के पास पीके नाग है बहुत बढ़िया बेटा। पीके नाग आपको कॉन्सेप्ट के लिए नहीं बोलूंगा मैं, बट पीके नाग यू कैन फॉलो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां तक सब लोग क्लियर है? आर यू क्लियर विद द रेफरेंसेस आल्सो? आपको बुक्स का थोड़ा आइडिया लग गया बेटा? आर यू क्लियर विद द बुक्स आल्सो? कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या करना है, मैंने बता दिया। अगर आपके पास एनफ फंड्स नहीं है, आप तीनों बुक्स नहीं परचेज कर सकते, टॉप 3 जो है, आपको एक ही बुक परचेज करनी है। देन द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेंजल एंड बोल्स, सेकंड इज मॉरन एंड सपीरो, थर्ड इज बॉर्गनेक एंड सॉन्टैग। बट तीनों ही क्लासिकल बुक है बेटा, वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स। ठीक है, अनीस इज आस्किंग पीवाईक्यू एनफ नहीं होगा एक्सी के लिए? नहीं बेटा, पीवाईक्यू से सिर्फ पीवाईक्यूज करके क्या करोगे? रैंक तो अगर आप रैंक के लिए देखो, दो मकसद हो सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, अगर जस्ट क्वालिफाई करना है, पीवाईक्यूज आर एनफ। बट अगर आपको रैंक लेकर आनी है तो पीवाई के साथ साथ आपको, पीवाईक्यू के साथ साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, है ना? ठीक है, ओके, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग बेटा इन नेगी 10 टेलीग्राम चैनल। जितनी भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं थर्मो से रिलेटेड, आई विल बी शेयरिंग इट फॉर यू पीपल। यू नीड नॉट टू वरी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी। use English sir please. Dinesh, whatever is required I'm telling in English only. Teaching part I'm telling in English only. Whatever I'm saying in English, same thing I'm repeating in Hindi, so you need not to worry beta, everything will be in bilingual. Okay, so don't worry about that part. चलो, okay beta Rahul, चलो, now shall we start first chapter? पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए, बोलो बेटा, पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए। Bet 100% this is comprehensive course, this is full course, this is detailed course.
पूरा कोर्स मैं फ्री पढ़ाने वाला हूं ऑन दिस यूट्यूब चैनल, मंडे टू फ्राइडे 6:15 PM to 7:30 PM। बोल दिया फाइनल, अब बार बार मत पूछो। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट, system surrounding and boundary। type in chat box when I'm saying system, what is coming in your mind? जैसे ही मैंने word use किया system, what is coming in your mind? type in chat box, what is the definition of system? बोलो रे बाबा, what is system? I want everyone to type in chat box। बोलो बेटा फटाफट से, system का मतलब क्या है? system की definition टाइप कीजिए chat box में। आपने पढ़ा होगा, a given quantity of matter or region in space which is under investigation, which is under observation। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। चाहे वो गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, कोई फिक्स्ड मास हो, या फिक्स्ड रीजन इन स्पेस हो, एनीथिंग, राइट? यस, व्हाटएवर इज अंडर कंसिडरेशन। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताता हूं बेटा, गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर कंसिडरेशन और अंडर एनालिसिस और अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैं आपको एक बहुत 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 इजी क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन वाटर बॉटल। मान लीजिए मेरे पास एक वाटर बॉटल है। लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन वाटर बॉटल, मेरे पास एक वाटर बॉटल है। ध्यान से सुनना बेटा, आई एम हैविंग वन वाटर बॉटल। भूल जाओ कि ये प्लास्टिक है। लेट अस सपोज दिस इज मेड अप ऑफ सम स्टील कंडक्टिंग मटेरियल। लेट अस सपोज आई एम सप्लाइंग सम हीट, लेट अस सपोज आई एम सप्लाइंग सम हीट टू दिस वाटर। Let us suppose I am supplying some heat to this water. Initial temperature of this water was 25 degree Celsius. Starting का temperature ये water का 25 degree Celsius. In the initial temperature of the water was 25 degree Celsius. I have supplied some amount of heat. Now, if I ask you, after supplying some X amount of heat, what is the final temperature of the water? इस question में system क्या होगा? What will be your system बेटा? What will be your system? फटाफट से बोलेंगे बेटा। Yes, very good किरण, very good। What will be your system? I am asking what will be your system? फटाफट से बताएंगे बेटा, सिस्टम क्या होगा आपका? ओके सुमित, ओके बेटा, सिस्टम क्या होगा? What is your system? What is under observation? मैं किसका फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा हूं आपसे? I am asking the final temperature of what? Water. This water is my system। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? 100% this water is my system। I hope everyone is clear। देखो ध्यान से, this is the same bottle, let me say it is made up of some conducting material। this bottle is carrying some water। let me say the initial temperature of this water was 25 degrees Celsius। Now let us suppose I am supplying some heat and I am asking, after supplying heat, what will be the final temperature T2? So 100% this water is under observation। ये जो water है ये under observation है। 100% this water is my thermodynamic system। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। I hope no one is having doubt till here। Now listen carefully। What is surrounding? अगर मैं आपसे पूछूं what is surrounding? Surrounding क्या होगा बेटा? Surrounding क्या होगा? What will be surrounding? Surrounding क्या होगा? Let us suppose I am having some water bottle made up of conducting material and I am supplying some heat। I want to know what is the final temperature। Of course water is final temperature of water, 100% water is my system। I am asking what is surrounding? Surrounding क्या होता है? Yes, anything which is external to the system। Anything which is external to the system is known as surrounding। 100% बेटा, you are absolutely correct। बिल्कुल 100% correct। Surrounding is something which is external to the system। Now what is boundary?
बाउंड्री क्या होती है बेटा? व्हाट इज बाउंड्री? इफ आई आस्क यू व्हाट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट इज बाउंड्री? व्हाट इज बाउंड्री? बाउंड्री क्या होती है बेटा? फटाफट से बोलो, बाउंड्री क्या होती है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? यस, बाउंड्री इज द इंटरफेस which will be separating the system and surrounding. Correct? Yes, yes, very good. अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. I'm coming back to this. I'm coming back to this question. I'm coming back to this question. बेटा ध्यान से सुनना. I was having one water bottle which was having conducting walls. This water bottle was carrying some water. The initial temperature of the water was 25 degrees Celsius. I was supplying some heat. The temperature of water was increasing. I asked you what is the final temperature. Then I asked you, I'm asking final temperature of the water. Then what is the system? You told sir water is the system. अब ये बताओ, other than water is my surrounding. यहां पे बाउंड्री क्या होगी? इस एग्जाम्पल में बाउंड्री क्या होगी बेटा? What will be the boundary? What will be the boundary? What will be the boundary in this example? बाउंड्री क्या होगी बेटा? मथान राज, व्हाट विल बी द बाउंड्री? केयोर कुमार, व्हाट विल बी द बाउंड्री? बॉटल. बॉटल विद बॉटल विल बी द बाउंड्री. बी स्पेसिफिक रे बाबा, यू आर नेगी सोल्जर्स. बी स्पेसिफिक. बॉटल, बॉटल मतलब क्या? बॉटल मतलब क्या? नो. आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल और इनर सरफेस ऑफ द बॉटल. व्हाट विल बी द बाउंड्री? आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल और इनर सरफेस ऑफ द बॉटल. बॉटल वॉल, वॉल मीन्स व्हाट? इनर सरफेस और आउटर सरफेस. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. देखो अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. 100%, लुक एट हियर, 100% द बाउंड्री विल बी दिस इनर सरफेस ऑफ द वाटर बॉटल. इट शुड बी द बाउंड्री बेटा, यही होनी चाहिए बाउंड्री. इफ यू आर सेइंग आउटर सरफेस, ध्यान से देखना बेटा, क्या है डेफिनेशन बाउंड्री की? बाउंड्री इज द इंटरफेस विच इज शेयर्ड बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो यार एक चीज देखो, लेट अस सपोज यू पीपल आर सेइंग सर दिस इज द बाउंड्री. लेट अस सपोज यू पीपल आर सेइंग सर दिस इज द बाउंड्री. तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाटर बॉटल भी तो आ गई. बट यू पीपल टोल्ड सर सिस्टम इज वाटर. अगर आपका सिस्टम वाटर है देन 100% this should be your boundary. This should be your boundary. Inner surface of the water bottle must be your boundary. I hope each and everyone is clear. Now listen carefully what I'm saying. Whenever you will be representing boundary, you will be representing by dotted line. जब भी हम लोग, whenever we are going to represent the boundary, we'll be representing the boundary by dotted line. So I hope you people are able to understand. You people are able to understand this red dotted line. This red dotted line is representing the boundary. यहां तक क्लियर है आप लोग? इनसाइड आई एम हैविंग सिस्टम. ये जो वाटर है ये मेरा सिस्टम है. दिस रेड डॉटेड लाइन इज बाउंड्री एंड आउटसाइड इज माई सराउंडिंग. बाहर में सराउंडिंग है. कंफर्म मी बेटा, कंफर्म मी. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बोलिए बेटा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? देन आई विल मूव फॉरवर्ड. देन आई विल मूव फॉरवर्ड. चलो नाउ लिसन केयरफुली. आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना बेटा. देखो, लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ कंटेनर. मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है. इन दैट कंटेनर I am having two liquids. Let us suppose this is mercury and let us suppose this is water. Let us suppose I am having a container which is completely filled up to the brim. Let us suppose I am having a container which is completely filled up to the brim by two liquids. The bottom red one is mercury, the top one is water. Let me say the volume of the, let me say
the volume of the mercury is 6 meter cube. Let me say the volume of the water in this container is 5 meter cube. Any intelligent student of the class can tell me what is the total volume of the liquid contained by this container. What is the total volume of the liquid contained by this container? कोई मुझे बता सकता है बेटा? Anyone in the class can tell me what will be the total volume of the liquid contained by this container? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताइए बेटा. 100%. Total volume will be equal to what बेटा? 100% total volume will be the volume of mercury 6 meter cube plus volume of water 5 meter cube 11 meter cube 11 meter cube. अब बेटा ये बताना, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, ये बताना ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? एनीवन इन द क्लास बेटा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? Anyone in the class can tell me what is this? Excellent. What is this बेटा? ये क्या है? What is this? फटाफट से बोलेंगे. What is this? This is the interface. Now एक चीज बताना, when I asked you, जब मैंने आपसे पूछा, when I asked you what is the volume of that liquid, total liquid in this container, आपने बोला सर 6 meter cube plus 5 meter cube. आपने इंटरफेस का वॉल्यूम तो ऐड नहीं किया बेटा. इंटरफेस का एक्चुअली वॉल्यूम होता ही नहीं है. मैं यही आपको बताना चाह रहा था. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. ये जो इंटरफेस है, मैथमेटिकली द थिकनेस ऑफ इंटरफेस विल बी 0 एंड इफ द थिकनेस ऑफ इंटरफेस इज 0 द वॉल्यूम ऑफ द इंटरफेस विल बी 0, द मास ऑफ द इंटरफेस विल बी 0. अब मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स. नाउ लिसन केयरफुली. 1 मिनट बेटा. Now why I told you all these things, I will be giving you an example. Please observe. Let us suppose, देखना बेटा, let us suppose this is my system. मान लीजिए ये मेरा सिस्टम है. You can understand beta. This red dotted line is representing boundary, and let me say this is surrounding. Let me say this is surrounding. This red dotted line is your boundary. This red dotted line is basically your boundary. Now any intelligent student of the class can tell me what will be this total beta. ये total क्या होगा? What will be this total? What will be this total? ये total क्या होगा बेटा? What will be this total? ये total क्या होगा? Any intelligent student of the class? Yes. This total, very good बेटा. This total will be what? यूनिवर्स. 100% ये जो टोटल है इसको आप लोग क्या बोलोगे? यूनिवर्स. अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग दिस बैड कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं. देयर विल बी सो मेनी पीपल हु विल राइट लाइक दिस. अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज यूनिवर्स, इफ आई आस्क व्हाट इज यूनिवर्स, दे विल बी सेइंग सर यूनिवर्स इज सिस्टम. यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस बाउंड्री. System plus boundary plus surrounding. Now my friend, this definition is not correct because clearly I told you boundary is basically an interface and mathematically the thickness of interface is 0. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. Rather you will be writing what? इसकी जगह पर आप क्या लिखने वाले? Universe is basically what बेटा? यूनिवर्स इज बेसिकली व्हाट? यूनिवर्स इज बेसिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग. आप ऐसा लिखेंगे. यू विल बी राइटिंग लाइक दिस बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग.
आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। तो आप लोग ऊपर वाले की तरह नहीं लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग लाइक दिस, यूनिवर्स इज बेसिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग। चलो जो जो मैंने बोला फटाफट से आपको डेफिनेशन से रिकलेक्ट करवा देता हूं। प्लीज ऑब्जर्व वट एवर वी हैव डिस्कस, प्लीज ऑब्जर्व। System, quantity of matter or region in space which is under investigation is known as system. Surrounding, anything which is external to the system is known as surrounding. Boundary, boundary is the interface shared by system and surrounding. Mathematically, thickness of boundary is 0, hence it has neither volume nor mass. System प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक आप लोग क्लियर हैं? यहां तक आप लोग क्लियर हैं? फटाफट से बोलिए, यहां तक आप लोग क्लियर हैं? बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? ये जितना भी लिखा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग? सिस्टम इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. What is surrounding? Anything which is external to the system. What is boundary? Boundary is the interface which is shared by system and surrounding. Mathematically, the thickness of the boundary is 0, hence it has neither mass or nor volume. Universe is basically system plus surrounding. Are you clear till here? बोलो रे बाबा. I want everyone to type in chat box. I want everyone to type in chat box. अगर आप यहां तक क्लियर हैं, बोलो रे बाबा. पूरा थर्मो पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? Now, listen carefully beta. Boundary can be real or imaginary. सुनो ध्यान से, boundary can be real or imaginary. I will be asking you one question. Think carefully and answer me. देखो बेटा ध्यान से, please observe carefully. सुनो, let us suppose, listen carefully, let us suppose I am having this water bottle. This water is having temperature 25 degrees Celsius. I am supplying some heat to the water. Because of that, the temperature of the water is increasing. I want to find what is the final temperature of the water. So if I ask you what is my system, you will be saying sir, system is water. जो system है वो water है. Now if I ask you what is the boundary, what is boundary, यहां पर बताना बेटा बाउंड्री क्या होगी. ध्यान से देखना बेटा. What is boundary? I want everyone to tell me in a crystal clear way what is the boundary over here. क्या आपको लग रहा है ऐसा कि जो वाटर है वो इस लेवल तक है? The water which I am having inside this bottle is up to this level. तो यहां तक ये कर्व्ड सरफेस, this bottom circle and this top circle. top में एक सर्किल दिखाई दे रहा है आपको? Are you able to see this top circle? 100% that is my boundary. अगर मैं यहां पर दिखाऊं बेटा डायग्राम पर, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली. इफ आई शो ओवर हेयर, अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? दिस इज द बाउंड्री. आई वांट एवरीवन टू टाइप इन चैट बॉक्स. बोलो रे बाबा, क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? दिस इज बेसिकली द बाउंड्री. अब ध्यान से सुनना बेटा. नाउ लिसन केयरफुली. 1 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ लिसन केयरफुली. लेट अस सपोज आई रिमूव दिस वाटर. मान लो मैंने वाटर को हटा दिया. आपकी बाउंड्री ऐसी थी ना? देखो, कैन यू फील दिस बाउंड्री? यस, आई कैन फील दिस बाउंड्री. इनर सरफेस थी, ये साइड वॉल्स थी, आई कैन फील. कैन यू फील दिस टॉप? अगर वाटर को बाहर निकाल दिया जाए तो वो जो टॉप सर्किल बाउंड्री थी, कैन यू फील दैट? नो, वी कैन नॉट फील. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अब ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? 100% दिस इज माई रियल बाउंड्री. यहां पे कुछ है सरफेस. This is my real boundary. 100% this is my real boundary. This circular surface, this curved surface is my real boundary. But on the top,
This is my imaginary boundary because nothing is there. The moment I am removing the water, I cannot touch anything. So this is my imaginary boundary. I hope each and everyone is clear till here. बात समझ में आ रही है? What is the meaning of real boundary? What is the meaning of imaginary boundary? I am giving you one more example. Let us suppose I am having some pipe. मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है. Let us suppose I am having some pipe. Let me say through this pipe some fluid is flowing. Through this pipe some fluid is flowing. Now listen carefully. Let me say whatever the water I am having inside this pipe is my system. और मान लो फ्लूइड स्टॉप्ड है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है. अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना. लेट अस सपोज व्हाटएवर द वाटर आई एम हैविंग इनसाइड दिस पाइप इज माय सिस्टम. व्हाट विल बी द बाउंड्री? ये जो अंदर में वाटर है, ये जो अंदर में वाटर है, ये जो अंदर में वाटर है, दिस वाटर इज माय सिस्टम. दिस वाटर इज माय सिस्टम. ये जो अंदर में वाटर है ये मेरा सिस्टम है. 100% यू विल बी सेइंग सर दिस कर्व्ड सरफेस, ये जो पाइप का कर्व्ड सरफेस है वो बाउंड्री है, एंड वो जो एंड्स में सर्किल बन रहे होंगे वो बाउंड्री है. दिस सर्किल्स, दिस विच आई हैव रिप्रेजेंटेड विद द रेड डॉटेड लाइन, जिसको हमने रेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. नाउ इफ आई आस्क यू 100% in this case I'm having some real boundary, in this case I'm having some imaginary boundary. Any intelligent student of the class can tell me what is your real boundary, what is your imaginary boundary. फटाफट से बोलेंगे बेटा क्या real boundary है और क्या imaginary boundary है. I want everyone to type in chat box. फटाफट से बता दीजिए. Curved surface is what? Yes, Preetham, you are absolutely correct. Very good beta. Excellent, excellent. I am very happy. Very good, very good, very good. 100%. This curved surface is what? This curved surface is what? 100%. This curved surface is a real boundary. And if I ask you about this circular ends, these circular ends are what? ये जो circular ends हैं ये क्या represent कर रहे हैं? There is no doubt they are representing what? They are representing the imaginary boundary. अरे ये अंदर जो पानी भरा है इसको बाहर निकाल दो. So of course you will be getting one hole like this. ना उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा रे बाबा. Imaginary boundary है रे बाबा. Yes, yes, yes. Very good बेटा चेतन. Very good, very good, very good. Are you clear till here? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Yes, very good, very good, very good. Excellent, excellent. Now let us see the next heading बेटा. Let us see the next heading. बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा. What is the next heading? Boundary can be rigid in bracket fixed or flexible in bracket movable. क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना बेटा. क्या बोल रहे हैं? दूसरा केस आ रहा है. पहला केस तो डिस्कस हो गया, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी. नाउ द सेकंड केस इज बाउंड्री कैन बी रिजिड इन ब्रैकेट फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल इन ब्रैकेट मूवेबल. इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, बड़े ध्यान से समझेंगे. लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन रिजिड कंटेनर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड कंटेनर? एक बार फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में टाइप करो रे बाबा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड कंटेनर? लेट अस सपोज आई एम हैविंग सम रिजिड कंटेनर. जल्दी से बताना चैट बॉक्स में टाइप करके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड कंटेनर बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड कंटेनर? Let me say rigid container is the container whose dimensions will not change. Let me say I am having a rigid container. This rigid container is having some air. Let me say this air is present at 25 degrees Celsius. Let us suppose we are supplying some heat. Let us suppose we are supplying some heat of 100 kilojoule to the air. There is no doubt temperature of the air will increase. 100% temperature of the air will increase. Let us suppose the temperature became T2 and I want to find what is the final temperature T2. What is the final temperature of the air? आपको ये चीज तो अभी तक समझ में आ गई होगी कि यहां पर सिस्टम क्या है. In this whole scenario where I'm having one rigid container, this rigid container is carrying some air. I'm supplying some heat of 100 kilojoule to the air. 100% the temperature of the air will be increasing from 25 degrees Celsius to T2 temperature. I'm asking you what is this T2 temperature of the air? Can you tell me what is the system over here? यहाँ पर system क्या है बेटा? What is system here? What is system here? Anyone in the class can tell me बेटा? यहाँ पे system क्या है? 100% system is this air. And this red dotted line is the boundary. अब ध्यान से सुनना बेटा. During the process
डू यू थिंक एनीथिंग हैपनिंग टू दिस बाउंड्री? नो, ये तो यहीं पर ही है. अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस डू यू थिंक एनीथिंग हैपनिंग टू दिस बाउंड्री? नो, दिस इज हियर ओनली. ड्यूरिंग द प्रोसेस do you think anything happening to this? No, this is as it is. During the process do you think anything is happening to this? No, no. 100% all these boundaries are rigid boundaries. ये जितनी भी boundaries अभी दिख रही हैं they are all rigid boundaries. There is no doubt, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये सारी की सारी boundaries rigid boundaries हैं. सर फिर फ्लेक्सिबल बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री कैसी दिखती है? बताता हूं बेटा. लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेट अस सपोज आई एम हैविंग सेम एयर विच इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेट अस सपोज आई एम हैविंग सेम एयर विच इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेट अस सपोज आई वांट टू सी इफ आई एम सप्लाइंग द हीट. If I am supplying the heat of 100 kilojoule, 100% temperature of the air will increase. If I want to check what is the final temperature of this air, can you tell me what is my system? बेटा अगर final temperature T2 है and I want to find out what is the final temperature of the air, 100% this air in my system. ये जो air है ये मेरा system है, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. This air is my system. This air is my system. यहाँ तक सब लोग clear हैं? I hope each and everyone is clear till here. This air is my system. ठीक है? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? दिस एयर इज माई सिस्टम. हा, नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली. लेट अस टॉक अबाउट बाउंड्री. लेट अस टॉक अबाउट बाउंड्री. देखो, बिफोर सप्लाइंग द हीट आई वॉज हैविंग वन बाउंड्री हेयर एंड दिस कर्व्ड सरफेस एंड दिस थिंग. देखो, दिस बाउंड्री इज बेसिकली बॉटम पार्ट ऑफ द सिलेंडर. This boundary is basically bottom surface of the piston and this boundary is basically curved surface of the cylinder. देखो, जब मैंने हीट सप्लाई करी तो यार ये तो वहीं पर ही है. this boundary is at the bottom of the cylinder only. ये भी वहीं है. this boundary is also basically bottom part of the piston only. But can you observe यहां पर क्या हुआ? पहले इतना कर्व्ड सरफेस था. Earlier this much curved surface was the boundary, but now this much curved surface is the boundary. So can you understand one thing beta? Can you understand one thing? This is your rigid boundary. This is your rigid boundary. It is not moving. But if you see this curved surface, this curved surface, this is your flexible boundary or you can say movable boundary. देखो, rigid boundary, this is your rigid boundary. top surface ये जो है ये भी आपकी rigid boundary ही है. but these curved surface boundary is basically your flexible boundary. थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रही है बेटा? are you clear till here? नहीं, अभी मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा. प्रोसेस तो अब देखो, दिस इज बेसिकली द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा बेटा. दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड आई एम टेलिंग यू आई विल बी टीचिंग 150 आवर्स. एक बार आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अगर पढ़ लिया, इफ यू स्टडी दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फ्रॉम मी, आई एम टेलिंग यू एप्लीकेशन पार्ट विल बी वेरी इजी. आईसी इंजन, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, कंप्रेसिबल फ्लो, ये सब केक वॉक होने वाले हैं बेटा. पूरे केक वॉक होने वाले हैं. तो इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. हर चीज पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बिल्कुल. यू विल बी हैविंग द, मैंने बोला ना बेटा, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट. आई विल बी डिस्कसिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो. आई विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स आल्सो. गेट के प्रीवियस प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज प्रीवियस प्रॉब्लम्स, कन्वेंशनल प्रॉब्लम, पीके नाप के प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. नीड नॉट टू वरी, वो मेरे पे छोड़ दो. ठीक है? यस, कर्व्ड सरफेस, वो जो कर्व्ड सरफेस है वही तो बढ़ दी है ना. अरे यार देखो, ये देखो ना, ये देखो, इमेजिन करो बॉटम तो वहीं पर ही है ना. या चलो इसी में देख लो, यहां पर देखो बेटा, ये क्या है, इसको इमेजिन कर पा रहे हो? ये बॉटम में जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है?
बॉटम में जो डॉटेड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटिंग द बेस ऑफ द सिलेंडर. ये जो टॉप में डॉटेड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, बॉटम ऑफ द पिस्टन. एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कर्व सरफेस ना. अरे पिस्टन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं देखा रे बाबा, ऐसा कर्व. यू आर हैविंग वन सिलेंडर, ये बॉटम, ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, एंड ये जो टॉप में एक लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बॉटम ऑफ द पिस्टन. लेट अस सपोज व्हेन दिस पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, ये जो सरफेस थी ये तो वहीं की वहीं है, इसको कुछ थोड़ी ना हो रहा है. अरे ये जो बॉटम ऑफ द पिस्टन था वो तो वहीं का वहीं है. क्या चीज चेंज हो रही है, वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो बढ़ रहा है ना रे बाबा, दैट इज चेंजिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज योर फ्लेक्सिबल बाउंड्री, बट दिस एंड दिस इज योर रिजिड बाउंड्री. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. चलो फिर अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना. अब ये आपको पता है बेटा, दिस इज ज्ञान गंगा. ये टाइनी यूआरएल एक बार आप लोग देख लेना, tinyurl.com/negiton code. एक बार इस पे आप जाएंगे तो आपको जितनी भी फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास है यू विल बी एबल टू वॉच. एंड ऑफ कोर्स दिस इज स्टार्टेड Monday to Friday. We are going to discuss 6:15 to 7:30 p.m. 6:15 p.m. to 7:30 p.m. this basic thermodynamics course. Today evening 10:15 p.m. we'll be meeting on Unacademy learning app. Unacademy learning app इंस्टॉल कर लीजिए जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है. यूज द इनवाइट कोड नेगी10. ओके चलो, नाउ I will be asking you one interview question. एक इंटरव्यू. गुड इवनिंग बेटा जयदेव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैन आई आस्क यू वन इंटरव्यू क्वेश्चन? कैन यू आस्क यू वन इंटरव्यू क्वेश्चन? फटाफट से बताएंगे. कैन आई आस्क यू वन इंटरव्यू क्वेश्चन बेटा? फटाफट से बताओ. क्विकली 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 बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट? बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट? बेटा सब चीजें आपको मिल जाएंगी नेगी10 टेलीग्राम चैनल पर. एक चैनल है नेगी10, उसको आप ज्वाइन कर लो, आपको हर चीज मिलेगी बेटा. यू नीड नॉट टू वरी, आपको हर चीज मिलेगी बेटा. बिल्कुल बेटा बिल्कुल. बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट? बोलिए बेटा. मौली थोड़ा सा लिटिल रॉन्ग बेटा. ओके अच्छा ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आई विल बी आस्किंग यू वन थिंग. चलो इसको एक अच्छे से समझते हैं बेटा, एक अच्छे तरीके से समझते हैं. लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन बर्निंग कैंडल. चलो समझ लेते हैं बेटा, बिल्कुल प्यार से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से समझेंगे. लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस बर्निंग कैंडल. ध्यान से देख लेना बेटा. लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस बर्निंग कैंडल. मेरे पास एक जलती हुई मोमबत्ती है, देख पा रहे हैं? आई एम हैविंग वन बर्निंग कैंडल. 100% there will be some heat transfer from this candle to the surrounding. Let us suppose, let me say I'm asking you one question. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है? The question is how much is the heat transfer from this candle to the surrounding. मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा, how much is the heat transfer from this burning candle to the surrounding. Any intelligent student of the class can tell me what is my system? What is my system? What is my system बेटा? Anyone in the class can tell me what is my system? System क्या है? System क्या है? If I want to see how much is the heat transferred from candle to the surrounding, what is my system? Candle is my system. Very good. Burning candle is my system. 100%. Then what will be the boundary बेटा? Boundary क्या होगी? Boundary क्या होगी? What will be the boundary? हाँ ठीक है, वेरी गुड. कैन आई से दिस विल बी माई बाउंड्री? मान लो ये कैंडल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सो दिस विल बी माई बाउंड्री बेटा. देख लो ध्यान से चारों तरफ. हाँ एक्सीलेंट बेटा साई धीरज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट. सो रमना सर, so look at here beta, this is your burning candle. Please observe,
look at here, this is your burning candle, this is your system, this is your system, and let me say this is your boundary. Of course, some energy is leaving the system in the form of heat, there is no doubt. अच्छा, ये जो heat निकल रही है, there is some heat interaction between system and surrounding, there is no doubt, 100% there is a heat interaction between system and surrounding. अच्छा ये बताओ, इस heat interaction से, because of this heat interaction, do you think the air of US will be getting heated? अरे US तो आ रहा है ना बेटा, अरे United States is coming in your surrounding ना. So I am asking you one simple question, do you think because of this heat interaction the air of the US will be getting heated? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो जल्दी से. Do you think? No. अच्छा, do you think because of this heat interaction the air of entire India will be getting heated? Air of entire India will be getting heated? No. Do you think because of this heat interaction air of entire Andhra Pradesh will be getting heated? No. Entire Vizag air will be getting heated? Acha, at least in this room whatever air I am having that will be getting heated? No. Only the nearby air will be getting heated. Means listen carefully what I am saying. Whenever system is interacting with the surrounding, 100% the properties of intensive, let me use correct word, intensive properties of whole surrounding will not be affected. Only a small part of surrounding will be there where the intensive property will be getting changed, where the temperature of the air will be getting changed. इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना. देखो, मान लो this whole is surrounding, ये surrounding है, this whole is surrounding, and let us suppose this total is universe. So look at here beta, I will be having one small part of surrounding where the intensive property will change. देखो ध्यान से, बेटा this area, this is the part of surrounding, where the intensive properties will change. This is the part of surrounding where the intensive properties will change. Now this part, ध्यान से सुनना बेटा, this part where the properties will change is known as immediate surrounding. The part of surrounding where the intensive properties will change is known as immediate surrounding, whereas remaining part of the surrounding where the properties are not affected is known as, intensive properties are not affected, is known as environment. So can I give one beautiful conclusion? Surrounding is basically the summation of immediate surrounding and environment. Can I give this conclusion beta? Can I give this conclusion?
Surrounding is basically what? Can I say surrounding is basically what? It is the summation of what? Immediate surrounding. Surrounding is basically what? Surrounding is basically what? It is the summation of immediate surrounding plus environment. What is immediate surrounding, beta? Due to the interaction between system and surrounding, immediate surrounding is that part where the intensive properties, I will discuss what is the meaning of intensive property. फिलहाल आप मान लो, for the timing you assume temperature is intensive property. Intensive properties changes, whereas environment is the part of surrounding where we don't have any effect, where we don't have any effect. ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोग? आर यू क्लियर टिल हियर बेटा? बिल्कुल बेटा, यस ऋतुजा, करेक्ट. सो बेटा ध्यान से सुनना, the part of the surrounding where intensive properties can vary during energy interactions is known as immediate surrounding, whereas the remaining part of the surrounding where intensive property are unaffected during energy interactions is known as environment. Are you clear till here? बोलो रे बाबा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? बोलो बेटा. I hope each and everyone is clear till here. Thank you so much Salman, thank you so much. Yes, 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 excellent, excellent, excellent. काफी लोगों को क्लियर हो गया. गुड गुड गुड. चलो एक डायग्राम बना के सारा क्लियर कर देता हूं. देखो बेटा, एक डायग्राम बना के सारा क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखना. सपोज दिस इज योर सिस्टम. Suppose this is your boundary. Suppose this total is universe. So whenever I am having interactions between system and surrounding, the whole part of the surrounding will not be affected. मान लीजिए यहां तक इफेक्ट हो रहा है. So this is your immediate surrounding. Immediate surrounding यहां लिख रहा हूं बेटा, है ना, ये वाला पार्ट. And this is your environment. बोलो, किसी को डाउट है इस डायग्राम में? Anyone having any doubt in this diagram? Anyone having any doubt? Beta Navneet, already 80/20 series is going on, you can attend over there. Already 80/20 series is going on, you can attend over there. That is crash course only on Mechanical Army YouTube channel. ठीक है? So happy? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? So I hope everyone is happy till here. अगर आप लोग खुश हैं, एक हार्ट का सिंबल बना देंगे बेटा, एक हार्ट का सिंबल बना देंगे. If you people are happy, put one heart symbol. अगर आप लोग खुश हैं, yes you like the class, you enjoyed the class, put one heart symbol. एक हार्ट का सिंबल बना देंगे बेटा, एक हार्ट का सिंबल बना देंगे. put one heart symbol. Don't worry about the language, I will take care of both Hindi and English language. आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. You need not to worry about the concepts, I will make sure you are getting each and every concept. You need not to worry about the problems, I will be discussing each and every PYQ, each and every PYQ and the practice questions from the various standard books. आपको बिल्कुल नहीं घबराना है.
हार्ट का सिंबल बना देंगे रे बाबा फटाफट से। और जो लोग इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली लेट अस स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, जो लोग इस क्लास को पहली बार देखेंगे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, काइंडली माय फ्रेंड्स पुट द कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर जाना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन कौन नेगी सोल्जर्स इस क्लास को देख रहा है। आई वॉन्ट ऑल माई नेगी सोल्जर्स टू बी कनेक्टेड विद मी। मैं चाहता हूं कि मेरा हर नेगी सोल्जर जो इस वीडियो को देखेगा मेरे साथ कनेक्टेड होगा। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस। तो बेटा एवरी वीक मंडे टू फ्राइडे आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 6:15 PM to 7:30 PM we are going to meet and we will be discussing the basic thermodynamics। जो लोग 2021 के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूं, दिस कोर्स विल बी वेरी 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 स्ट्रिक्टली फॉर गेट 2022 and 23, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस बिफोर गेट एग्जाम। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.